ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد کی ایک حسین صبح اپنی پوری رانائی کے ساتھ طلوع ہوئی۔ دریا دجلہ کی شفاف لہریں سورج کی سنہری کرنوں کو اپنے دامن میں اس طرح سمیٹے ہوئے تھیں جیسے کسی نے پانی کی سطح پر بے شمار ہیرے بکھیر دیے ہوں۔ دریا کی وسعت اور اس کے پرسکون منظر کو دیکھ کر ہر آنے والے کے دل میں عجب سی ٹھنڈک اور سکون اتر جاتا تھا۔ نرم و ملائم ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں کو آہستہ آہستہ جھلا رہے تھے، جبکہ پرندے اپنی سریلی آوازوں میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اس پرفضا اور دلکش کنارے پر ایک بزرگ نہایت سادہ اور فقیرانہ لباس میں خاموشی سے تشریف فرما تھے۔ ان کے چہرے انور پر ایسی نورانیت اور وقار جھلک رہا تھا کہ جو بھی انہیں دیکھتا بے اختیار ادب سے اپنا سر جھکا لیتا۔ وہ حضرت بہلول دانا تھے۔ کبھی وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ریت کو سمیٹتے، پھر بڑی محبت اور انہماک کے ساتھ اس سے ایک نہایت خوبصورت اور عالی شان محل تعمیر کرتے، اور جب وہ محل مکمل ہو جاتا تو مسکراتے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں سے اسے منہدم کر دیتے۔ پھر چند لمحوں بعد دوبارہ اسی شوق اور سکون کے ساتھ ایک نیا محل بنانا شروع کر دیتے۔ وہاں سے گزرنے والے لوگ اس عجیب و غریب منظر کو حیرت سے دیکھتے، مگر حضرت بہلول دانا کے اس عمل میں پوشیدہ حکمت کو کوئی بھی سمجھ نہ پاتا تھا۔ اسی وقت شاہی محل کی بلند بالکنی سے خلیفہ ہارون رشید کی بیگم کی نظر اس منظر پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بزرگ بڑی توجہ اور اطمینان سے ریت کے محل بنا رہے ہیں، مگر ہر بار خود ہی انہیں مٹا دیتے ہیں۔ یہ منظر ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ انہوں نے اپنی 2-3 کنیزوں کو ساتھ لیا اور ساحل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ جب وہ بہلول دانا کے قریب پہنچیں تو ادب سے سلام کیا۔ بہلول دانا نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور پھر اپنی مشغولیت میں لگ گئے۔ بیگم کچھ لمحے انہیں دیکھتی رہیں، پھر بڑی نرمی سے عرض کیا، حضرت، اگر گستاخی معاف ہو تو ایک سوال پوچھوں؟ آپ بار بار یہ محل کیوں بناتے ہیں اور پھر خود ہی گرا دیتے ہیں؟ بہلول دانا نے ریت کی مٹھی ہاتھ میں لی، آسمان کی طرف دیکھا اور بڑی اطمینان بھری آواز میں فرمایا، میں جنت کے محل تعمیر کر رہا ہوں۔ بیگم نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ انہیں تو چاروں طرف صرف ریت ہی ریت دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے پھر پوچھا، حضرت، یہ ریت کے محل جنت کے محل کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہلول دانا مسکرائے اور بولے، جس نگاہ میں یقین ہو اسے ریت میں بھی رحمت نظر آتی ہے، اور جس دل میں دنیا بس جائے اسے جنت بھی ریت جیسی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سن کر بیگم کچھ دیر خاموش رہیں۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، اگر یہ جنت کے محل ہیں تو کیا آپ ان میں سے ایک مجھے بیچ دیں گے؟ بہلول دانا نے بنا کسی تمل کے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، 3 درہم دے دیجئے۔ بیگم نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا۔ انہیں لگا شاید یہ کوئی اشارہ ہے جسے وہ ابھی سمجھ نہیں پا رہی۔ انہوں نے اپنی ایک کنیز کی طرف دیکھا اور فرمایا، حضرت کو 3 درہم پیش کر دو۔ کنیز نے ادب سے 3 درہم ان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بہلول دانا نے انہیں قبول کیا، دعا دی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائے جس کی قیمت دنیا کی کوئی دولت ادا نہیں کر سکتی۔ بیگم اس واقعے کو دل میں لیے محل لوٹ آئیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی اور حیرت بھی۔ شام ڈھلی، رات آئی اور کچھ دیر بعد خلیفہ ہارون رشید بھی محل پہنچے۔ کھانے کے بعد جب دونوں تنہا بیٹھے تو بیگم نے دن بھر کا پورا واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح بہلول دانا ریت کے محل بنا رہے تھے، کس طرح انہوں نے انہیں جنت کے محل کہا، اور پھر صرف 3 درہم لے کر ایک محل بیچ دیا۔ خلیفہ نے پوری بات سنی اور ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولے، بیگم، بہلول دانا اپنی حکمت کے لیے مشہور ہیں، مگر آج شاید انہوں نے آپ کو ایک دلچسپ بات میں الجھا دیا ہے۔ دونوں مسکرا دیے، مگر بیگم کے دل میں یہ احساس باقی رہا کہ اس بزرگ کی باتوں میں کوئی گہری حکمت ضرور چھپی ہے۔ رات گہری ہوتی چلی گئی۔ محل کی فضا پر خاموشی اتر آئی۔ ہر طرف سکون تھا۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے بستر پر لیٹے تو جلد ہی ان کی آنکھ لگ گئی۔
मगर उन्हें यह मालूम न था कि आज की रात उनके लिए सिर्फ आराम की नहीं, बल्कि एक ऐसी तालीम की रात बनने वाली है जो उनकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल देगी। रात की तन्हाई गहराती चली गई। महल के ऊंचे गुंबदों पर चांदनी उतर आई थी और हर तरफ खामोशी का आलम था। खलीफा हारून रशीद गहरी नींद में थे कि अचानक उन्होंने खुद को एक ऐसे मंजर में खड़ा पाया जिसे देखकर उनकी सांसें थम सी गईं। उनके सामने एक ऐसी सरजमीन थी जहां की हवा में खुशबू घुली हुई थी, फिजा में सुकून था और हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ था। दूर दूर तक ऐसे बागात थे जिनके दरख्तों पर ऐसे फल लगे थे जिन्हें दुनिया की आंख ने कभी नहीं देखा था। नहरें बह रही थीं, मगर वह आम पानी की नहरें नहीं थीं। कहीं दूध की नहरें थीं जो बिल्कुल साफ और सफेद थीं, कहीं शहद की नहरें थीं जिनकी खुशबू दिल को महका रही थी, और कहीं ऐसा पाकीज़ा पानी बह रहा था जिसे देखकर प्यास खुद शर्मिंदा हो जाए। रंग बिरंगे परिंदे ऐसी मीठी आवाजों में तस्बीह पढ़ रहे थे कि इंसान का दिल दुनिया के हर गम को भूल जाए। हर तरफ रहमत, सुकून और जन्नत की रौनक थी। खलीफा उस दिल फरेब मंजर को देखते हुए आगे बढ़े तो उनकी नजर एक ऐसे आलीशान महल पर पड़ी जिसकी चमक सूरज की रोशनी से भी ज्यादा दिलनशीं थी। उसकी दीवारें मोतियों की तरह चमक रही थीं, दरवाजे याकूत और जमर्रुद से आरास्ता थे, और छतों से ऐसी रोशनी फूट रही थी जिसे बयान करना मुश्किल था। महल के चारों तरफ ऐसे बाग थे जिनमें हर मौसम के फूल एक साथ खिले हुए थे। हवा चलती तो फूलों की खुशबू दूर तक फैल जाती। महल के सामने बुलंद दरवाजा था और उस दरवाजे पर नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते निगाहबानी कर रहे थे। खलीफा ने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा तो उस पर सुनहरे हरूफ में उनकी बेगम का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने सोचा, जब यह मेरी बेगम का महल है तो मेरा दाखिला भी यकीनी है। वह इत्मीनान के साथ आगे बढ़े और दरवाजे से अंदर जाने लगे, मगर दरबानों ने अदब के साथ उनका रास्ता रोक लिया। एक फरिश्ते ने नरमी से कहा, ऐ खलीफा, ठहर जाइए, आपको इस महल में दाखिल होने की इजाजत नहीं। खलीफा हैरान रह गए। उन्होंने फौरन कहा, तुम शायद मुझे पहचानते नहीं, मैं हारून रशीद हूं और इस महल पर मेरी बेगम का नाम लिखा है। अगर यह उसका महल है तो मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? फरिश्ते ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुनिया के कानून और हैं, मगर आखिरत के उसूल बिल्कुल जुदा हैं। यहाँ हर शख्स उसी नेमत का मालिक होगा जो उसने अपने लिए आगे भेजी होगी। जिस दरवाजे पर जिसका नाम लिखा है, दाखिला भी सिर्फ उसी का होगा। यह जवाब सुनकर खलीफा के दिल पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उन्होंने दोबारा दरख्वास्त की, क्या कोई और रास्ता नहीं? फरिश्ते ने जवाब दिया, रास्ता दुनिया में था, वहां नेक अमल, सच्चा दिल और अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ माल यहां महलों की शक्ल इख्तियार करता है। अब यहां सिर्फ वही पाएगा जो वहां भेज चुका होगा। ये सुनते ही खलीफा की आंखों के सामने दिन का वह मंजर घूम गया जब उनकी बेगम ने बहलोल दाना से 3 दिरहम में जन्नत का महल खरीदा था। अब उन्हें महसूस हुआ कि बहलोल दाना की बात मजाक नहीं थी, बल्कि उसमें गहरी हिकमत और आखिरत का इल्म छुपा हुआ था। इसी सोच में डूबे हुए उनकी अचानक आंख खुल गई। उनका जिस्म पसीने से तर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने फौरन उठकर पानी पिया और कुछ देर तक खामोशी से बैठे रहे। रात अभी बाकी थी, मगर उनकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। सुबह की अजान का इंतजार उन्हें सदियों जितना लंबा महसूस होने लगा। जैसे ही फज्र का वक्त हुआ, उन्होंने नमाज अदा की और बिना किसी ताखीर के बहलोल दाना को तलाश करने निकल पड़े। अब उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह वह भी जन्नत का एक महल हासिल कर लें। बगदाद की गलियों में उस सुबह एक अजीब मंजर था। खलीफा हारून रशीद, जो हमेशा शाही लश्कर और वजीरों के साथ निकलते थे, आज सिर्फ चंद खादिमों के साथ बहलोल दाना की तलाश में थे। उनके चेहरे पर बादशाहों वाली शान कम और एक तलबगार की बेचैनी ज्यादा नजर आ रही थी। वह हर आने जाने वाले से पूछते, क्या तुमने बहलोल दाना को देखा है? कोई कहता, अभी कुछ देर पहले दरिया के साहिल की तरफ गए हैं। कोई कहता, वह तो हर रोज वहीं बैठकर लोगों को हिकमत की बातें समझाते हैं। आखिरकार खलीफा तेज कदमों से साहिल की तरफ बढ़े। दूर से उन्होंने देखा कि बहलोल दाना पहले की तरह रेत से महल बना रहे थे। उनके चेहरे पर वही इत्मीनान था
जैसे उन्हें दुनिया की किसी चीज की फिक्र ही ना हो। खलीफा पास पहुंचे तो अदब से सलाम किया। बहलोल दाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर रेत का एक और महल बनाने लगे। कुछ लम्हों तक खामोशी रही। आखिर खलीफा ने अर्ज किया, हजरत, आज फिर वही महल बना रहे हैं? बहलोल दाना ने फरमाया, हाँ, मैं आज भी जन्नत के महल तामीर कर रहा हूं। यह सुनते ही खलीफा के दिल में रात वाला ख्वाब ताज़ा हो गया। उन्होंने बड़ी बेताबी से कहा, हजरत, अगर ऐसा है तो मुझे भी एक महल बेच दीजिए। बहलोल दाना ने इस बार उनकी आंखों में गहराई से देखा, फिर बड़ी सुकून भरी आवाज में फरमाया, बेच दूंगा, मगर इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। खलीफा ने फौरन कहा, कीमत चाहे जितनी हो, मैं अदा कर दूंगा। बहलोल दाना ने रेत की मुट्ठी जमीन पर बिखेरते हुए फरमाया, अगर तुम ये महल चाहते हो तो मुझे अपनी पूरी सल्तनत देनी होगी। यह सुनकर खलीफा जैसे सन्न रह गए। कुछ पल तक वह बहलोल दाना का चेहरा देखते रहे, फिर बोले, हजरत, कल तो आपने यही महल मेरी बेगम को सिर्फ 3 दिरहम में बेच दिया था और आज मुझसे पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। यह फरकत क्यों? बहलोल दाना के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने फरमाया, कल तुम्हारी बेगम ने बिना देखे यकीन किया था। उसने सिर्फ अल्लाह की रहमत की उम्मीद में 3 दिरहम दिए थे, लेकिन तुम तो अपनी आंखों से जन्नत का मंजर देख कर आए हो। जिसने देख लिया हो उसके लिए कीमत बदल जाती है। यह सुनते ही खलीफा के जिस्म में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने किसी से अपना ख्वाब बयान नहीं किया था। फिर बहलोल दाना को यह कैसे मालूम हुआ? उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। उन्हें यकीन हो क्या कि अल्लाह अपने नेक बंदों के दिल पर वह इल्म खोल देता है जो आम इंसानों की पहुंच से बाहर होता है। खलीफा की आंखों में आंसू आ गए। वह रेत पर ही बैठ गए और बड़ी आजिजी से बोले, हजरत, अगर मेरी पूरी सल्तनत भी इस महल की कीमत है तो मैं देने को तैयार हूं। मुझे दुनिया की बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे आखिरत की कामयाबी चाहिए। बहलोल दाना ने उनकी तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखा, फिर फरमाया, ए हारून रशीद, अल्लाह को तुम्हारी सल्तनत की जरूरत नहीं, उसे तुम्हारे दिल की सच्चाई चाहिए। अगर दिल में इखलास हो तो 3 दिरहम भी पहाड़ों से ज्यादा वजनी हो जाते हैं, और अगर नीयत में खलल हो तो पूरी दुनिया की दौलत भी कुछ काम नहीं आती। इतना कहकर उन्होंने वह 3 दिरहम अपनी झोली से निकाले, खलीफा के हाथ पर रखे और बोले, मैंने उस वक्त भी दिरहम की कीमत नहीं देखी थी, नीयत की कीमत देखी थी। आज भी तुम्हारी तौबा और आजिज़ी ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। खलीफा हारून रशीद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बहलोल दाना के हाथ चूमे और अर्ज किया, आज आपने मुझे वह सबक दे दिया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। इंसान अपनी दौलत, अपने महलों और अपनी सल्तनत पर घमंड करता है, मगर आखिरत में उसके साथ सिर्फ उसके नेक अमल जाते हैं। बहलोल दाना मुस्कुराए और आसमान की तरफ देखते हुए फरमाया, दुनिया की इमारतें मिट्टी से बनती हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाती हैं, मगर इखलास, सदका और नेक नीयत से बनने वाले महल कभी फना नहीं होते। जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए रहमत के दरवाजे वहां खुलते हैं जहां इंसानी नजर पहुंच भी नहीं सकती। उस दिन खलीफा हारून रशीद जब वापस अपने महल लौटे तो वह पहले वाले बादशाह नहीं रहे थे। उनके दिल में दुनिया की चमक फीकी पड़ चुकी थी और आखिरत की फिक्र जाग चुकी थी। कहते हैं, उस वाकये के बाद उन्होंने गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों की खिदमत पहले से कहीं ज्यादा शुरू कर दी। उन्हें हर बार बहलोल दाना की वह बात याद आती थी कि जन्नत के महल दौलत से नहीं बल्कि सच्चे यकीन, खालिस नीयत और नेक अमाल से तामीर होते हैं।